Hello children, welcome back to Extra Class with Aryan Mandal. Students, today we are going to discuss your lesson number 16, direct and indirect speech from your book Collins English Grammar and Compositions. In this video we will explain all the exercises as well as the whole chapter. राइट इसमें कौन से रूल्स कहाँ पर अप्लाई होगी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें कौन से टेंस है उसको कैसे फॉर्म में चेंज करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? एज द नेम इज़ हेयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, किसी भी चीज़ों को हम लोग अगर फर्स्ट पर्सन के तौर पर डायरेक्टली बोलते हैं, राइट, the person is saying by himself only, that is known as direct speech. And if the sentence is spoken by another one, that is known as indirect speech, right? So let's get started. Read the dialogue को पढ़ना है। क्या है? Tourist, to whom does this castle belong? Its look haunted. Guide, it is abandoned now, madam. It once belonged to the great King Pratap. Like this, direct and indirect speech. Right, you have to read out this one. You got some idea about direct indirect speech. हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बड़ी बन जाती है. Now read and reported version of the dialogue into indirect speech. Spot the error and correct them. The tourist asks to whom that castle belonged. She remarked that its look haunted. The guide replied, that is abandoned. He explained that is once belonged to the great king Pratap. Okay. The tourist then asks what she have to do with get inside the castle. Okay, is there any error do you find? The tourist, yes, there is some error. What are the error? Just look at here. The tourist asks to whom that, यहाँ पर ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा. द टूरिस्ट आस्क्ड द, आस्क्ड होगा यहाँ पर, आस्क द गाइड. ओके, दैट द castle belong to whom, द castle belong to whom, इट्स लुक लाइक हंटेड. इस तरह से आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है. देख लेना आप. आगे बढ़ते हैं. द सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन क्या है? द सेंटेंस इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड एग्जैक्टली एज दे हैड बीन स्पोकन. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर स्पीकर खुद के वर्ड्स को जैसा उसने बताया सेम उसी वर्ड्स में हम लोग बताएं तो डायरेक्ट स्पीच है. द वुडकटर सेड इट इज़ द बिग बैड wolf. When the reported speech, the words speaker are reported in one's words, the sentence is indirect speech और रिपोर्टेड स्पीच. उसी बात को अगर कोई तीसरा पर्सन अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, द वुडकटर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज द बिग बैड wolf. Here are few rules which may help you to change direct to indirect speech. Like when a sentence is written in indirect speech, the tense, pronoun, modals, reporting verb and indicators of time and place change of tense कैसे change करेंगे? When direct speech is changed to indirect speech, change in tense occur depending on the reporting verb and the words of the speaker. Like the teacher said, we will go to the science fair. The teacher said that will be would, right? They would go to science fair.
The past tense used in reported speech said indicates that the verb is direct speech has to change in the past tense in indirect स्पीच. इसमें सैड है, से का पास्ट फॉर्म जो होता है सैड लिखा हुआ, तो इसीलिए हम लोग इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिए. वी की जगह क्या लिखे, वुड. राइट, वी विल बी दे. इसके बारे में प्रनाउन के बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे क्या है. अभी टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इन द पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस में होती है, flowing rules to be kept in mind for changing the tense of the verb in reported sentence. The simple present tense change to simple past tense. simple present tense अगर है उसमें तो हम लोग उसको simple past tense में change करेंगे. He said I love drinking coffee. He said that he loved. लव है इसमें ed, loved सिंपल पास्ट टेंस में आ गया. वर्ब का सेकंड फॉर्म ड्रिंकिंग कॉफ़ी. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. ही सैड आई एम राइटिंग ए लेटर. ही सैड दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर. राइट. इफ द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. कैसे? आई सैड आई हैव रीच्ड होम. मैंने बताया, तमन्ना ने बताया कि वह क्या हो गया, घर पहुंच गई है. रीच्ड होम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. कैसे? तमन्ना सेड दैट सी हैड रीच्ड होम. हैव क्या हो गया, हैड हो गया. और आई आपको पता ही है थर्ड फॉर्म में सी आएगी. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तब हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. लाइक आई सेड आई वॉच्ड ए डांस प्रोग्राम ऑन टीवी. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है. आई सेड दैट ही said that he had watched a dance program on TV. पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो चुकी है. सेंटेंस सेकंड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट विल बी चेंज इनटू past perfect tense. Naina said, I have bought a record player. Naina said that she had bought a record player. Okay, दोनों ध्यान देने की बात है आपको. सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. फिफ्थ नंबर रूल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. फराज सेड आई वॉज प्लेइंग विथ माई बेबी ब्रदर. फराज सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ हिज बेबी ब्रदर. हैड बीन आया इसमें, ठीक है. सिंपल फ्यूचर टेंस चेंज विल बी वुड एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर फ्यूचर टेंस है. मीनाक्षी सेड आई विल मीट माई फ्रेंड. विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. मीनाक्षी सेड दैट सी वुड मीट हर फ्रेंड. बाकी आपका जो वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसी में सेम रहेगा. नंबर 7, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चेंज टू वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक सी सैड आई विल बी स्टडिंग इन द मॉर्निंग. सी सैड दैट सी वुड बी स्टडिंग. विल क्या हो जाएगा, वुड. सेल हो जाएगा, शुड बी इन द इवनिंग. ओके. द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशन. कभी कभी चेंजेस नहीं होती है, कब नहीं होती आपको ध्यान देना है. When the reported speech convey a general truth or specific or scientific fact, okay, not fact. Our chemistry teacher said carbon monoxide is a poisonous gas. ये सबको पता है, एक फैक्ट है, तब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. कीप इन माइंड. Our chemistry teacher told us that carbon monoxide is a poisonous gas. Like Sheila said to us, the weather in London is very unpredictable. Sheila told to us that the weather in London is very unpredictable. इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी. सेकंड नंबर रूल में देखते हैं क्या है. When the information is relevant at the time of its being reported. जब उस सेंटेंस को बताया गया है या कहा जा रहा, at that time if it is very relevant, then there will be no any changes. Like the airport officer said,
The flights are being delayed because of fog and low visibility. At that time it is okay. So how there will be no any change. The airport officer told us that the flight are being delayed because of fog and low visibility. Okay, my father said I prefer eating food cooked in olives oil. My father said that he prefer eating food cooked in olive oil. Okay, so इसमें कोई changes नहीं होगा. Third number, when the reported speech contain two clauses both in past tense. अगर रिपोर्टेड स्पीच टू क्लोजेस है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, क्लोजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट के चैप्टर्स में, आप देख सकते हैं नेक्स्ट लास्ट के वीडियोस में. Phrases and clauses. Phrases, group of words which make sense but not complete sense, and clauses which make complete sense. अगर clauses है दो या दो से अधिक और पास्ट टेंस में है तब हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सैड आई कुड नॉट कम टू पिक यू अप एज आई वॉज इन द मीटिंग. माई मदर सैड दैट सी कुड नॉट कम टू पिक मी अप एज सी वॉज इन ए मीटिंग. यहाँ पर दो सेंटेंस आप देख सकते हो, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी. नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे? आई रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? इफ़ द स्पीकर इन द फर्स्ट पर्सन द प्रोनाउन इज इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आपको पता होगा. सो फर्स्ट पर्सन में है तब हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. आई सेड आई एम बोर्ड. आई सेड दैट आई वॉज बोर्ड. फर्स्ट पर्सन है, सो कोई चेंजेस नहीं होगा. इफ द स्पीकर इज सेकंड पर्सन, अगर स्पीकर सेकंड पर्सन है, द प्रोनाउन इज इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू द सेकंड person only. I said I have a new bag. You said I have a new bag. You said that you had a new bag. हम लोग अभी टेंस की बात नहीं कर रहे. टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने पता कर लिया है कि टेंस अगर हैव रहेगा तो हैड में चेंज करेंगे. थर्ड नंबर, if the speaker in that third person the pronoun is indirect speech are changed to be third person. She said I have a headache. She said that she had a headache. ओके. नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं. इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना तब आपको इजी लगेगा while we are doing exercise. That's why I am very shortly making you the explanation. The pronoun you, your and yours are changing according to person of the addressed person in indirect speech. indirect speech में अगर डायरेक्ट स्पीच में जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज करेंगे. लाइक सी सैड टू मी योर मदर वॉज लुकिंग फॉर यू. सी सैड टू मी दैट हुज मदर, माई है इसमें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चेंज करेंगे? योर की जगह माई. माई मदर वॉज लुकिंग फॉर मी. राइट, इसको आप पढ़ लेना. नंबर 5, demonstrative pronoun these and these are changed to that and those while changing a sentence from direct to indirect speech. Always keep in mind ये दोनों these will be that हो जाएगा और these THES these हो जाएगा क्या? those in indirect speech to direct speech to indirect speech. Tarun said I was absent on this day. these है यहाँ पर, this को हम लोग that कर देंगे. Tarun said that he had been absent on that day. Okay. चेंज ऑफ मॉडल. मॉडल अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा चेंजेस? मॉडल कैन, कुड, शुड जो है, कैन, विल, मे, सेल, मस्ट आर चेंज टू कुड, वुड, माइट, शुड एंड हैड इन पास्ट फॉर्म रेस्पेक्टिवली. लाइक आई आस्क्ड कैन आई टेक द कॉर्नर सीट. ही आस्क्ड इफ ही कुड टेक द कॉर्नर सीट. यहाँ पर आपको पता होगा कि इफ़ क्यों लगा, क्योंकि यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन है. समझ में आया आपको? नहीं आ रहा तो दोबारा बता रहा हूँ. ही आस्क्ड कैन आई टेक द कॉर्नर सीट, क्या मैं कॉर्नर का सीट ले सकता हूँ? इसका आंसर क्या आएगा? यस या नो. राइट. अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? यस और नो. If such type of questions which the answer is yes or no, then you have to use if while we are changing indirect speech. He asked if he could take the corner seat. Okay. Changes of reporting verb. Reporting verb को कैसे change करेंगे? Depending on the meaning conveyed by sentence in indirect speech, different reporting verb are used in indirect speech to replace words like said and told. राइट. रिपोर्टिंग स्पीच अगर है उसको हम लोग सैड और टोल्ड
भी लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर के कुछ सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें टोल्ड लिखा हुआ, किसी में सैड लिखा हुआ है। इसको कैसे चेंज करेंगे देखना है। अगर कोई ऑर्डर है, ऑर्डर वाले सेंटेंस से ऑर्डर लिखा हो तो ऑर्डर करेंगे। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड या इम्पार्ट हम लोग उसको लिखेंगे। एडवाइस है, एडवाइस्ड या अर्गड। इस तरह से आप इसको पढ़ लेना, चेंज करेंगे। चेंज द टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, इसको आप याद कर लेना। नाउ विल बी देन, हेयर विल बी देयर, टुडे विल बी दैट डे। अगर इस तरह के कोई वर्ड्स आती है चेंज करेंगे। ये पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पार्ट में क्या है देखते हैं, राइट। और रिराइट द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। गौतम सैड रवि आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स ऑन इंडियन हॉलीडेज। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। Gautam informed Rabi that I am reciting the answer. Listen carefully. Gautam informed Rabi that he was going to library to borrow some books on Indian history. Okay. One more time. Gautam informed Rabi that he was going to library to borrow some books on Indian history. Number second, Sital said, I am fond of eating dark chocolate. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना आपको। क्या होगा आंसर इसका इनडायरेक्ट स्पीच में? शीतल सैड दैट शी वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग डार्क चॉकलेट। सेकेंड नंबर कंप्लीट। नंबर थर्ड, क्वेश्चन इज माई फादर सेड टू मी आई हैव बीन गोइंग टू टेलीफोन एक्सचेंज एवरी डे टू लॉन्च ए कंप्लेंट। सेंटेंस किस में? हैव बीन गोइंग मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको चेंज करना प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। कैसे होगा? लिसन केयरफुली। माई फादर टोल्ड मी दैट he had been going to telephone exchange every day to lodge a complaint. One more time. My father told me that he had been going to telephone exchange every day to lodge a complaint. Number 4. The complaint it is extremely hot and suffocating in the garage. दे कंप्लेन, उन्होंने कंप्लेन किया। सो सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या होगा? दे कंप्लेन दैट इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिंग इन द गैरेज। वन मोर टाइम, दे कंप्लेन दैट इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेटिंग इन द गैरेज। नंबर 5 की ओर देखते हैं। द डॉक्टर टोल्ड अस आई विल बी अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली टुमारो। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? विल बी है, विल आपका वुड हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। टुमारो दैट डे हो जाएगा, राइट, फ्लोइंग डे। सो इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट ही वुड बी अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली द फ्लोइंग डे। वन मोर टाइम, द डॉक्टर टोल्ड अस दैट ही वुड बी अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली द फ्लोइंग डे। सो दिस इज कंप्लीट योर ए पार्ट। ए पार्ट का नंबर 5 तक कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। और न्यू जो वीडियो अपडेट आती है, मैं उसमें उस ग्रुप में मैं वीडियो की लिंक्स डाल देता हूँ। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप साथ ही साथ अगर आपको कोई मैसेजेस करना है, कोई कुछ क्वेरीज आस्क करनी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाती है, सो फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। सो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लिंक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एक्स्ट्रा क्लास विथ आर एन मंडल। थैंक यू।